Thank you for another session of Fam Health Live. We're doing it on Facebook. Hopefully, we'll soon be doing it on YouTube as well. And I'm delighted to say that I've got a really dear friend with me here today. This is Super Chef Nishant. He's recently won the Iron Chef title. थोड़ा इसके बारे में बताइए कहाँ हुआ क्या है So Iron Chef was held in Bangkok, and it was a real-time challenge. And I was in a team of 3, and the opposition was team of 3. So when you actually do shoot, you have a lot of back-end work which is already done. But there you are really on the it's like WWF challenge. So you are being given an hour to compete with the Iron Chef who was already very, very accomplished and had great name in the market. So I was literally under pressure. But Sid Sehgal, I would like to name him here. He said, Nishant, I'm not calling you to participate. I'm calling you to win. So it was an added pressure, but 1 hour, and then we created 6 dishes. So it was a tough one, but yes, winning is always nice. And that's not the reason. In fact, Gordon Ramsay, काफी Iron Chef में, I remember काफी साल पहले he made his mark because of Iron Chef as well. Yes, absolutely. तो ये आप देख रहे हैं आप इनकी future क्या बनने वाली है. But actually there's a reason कि हमने आपको यहाँ क्यों बुलाया है आज Fam Health Live में. Guys, I have known him for 3 years. हम हेल्थ के वेंचर में काम कर रहे हैं. I'll tell you a little about फैम हेल्थ. काफी लोग मुझसे पूछते रहते हैं कि कौन हो. मेरा नाम आशा है. Incidentally, the reason why you're here, chef, is because मुझे कोई और नहीं पता आपकी स्टैचर का शेफ जिसने इतनी रिसर्च करी है खाने के मामले में और हेल्दी खाने के मामले में. In fact, diabetes is every other family has diabetes. It's a lifestyle disease. It's everywhere. And in fact, one doctor had told me, Dr. Amrish Mittal, in fact, had told me कि ये कहते हैं कि डायबिटिक लोगों का खाना है. That means ये कोई और किस्म का खाना होगा. But actually, it's just a healthy plate that we Absolutely. It's just right? The normal plate which needs to be turned healthy, and that's it. It's not a rocket science kind of thing that you are doing. Excellent. तो आप हमें आज बताएंगे all the learning. Again, I have to caution everybody here. हम लोग ना डॉक्टर्स हैं, ना शेफ न्यूट्रिशनिस्ट हैं, तो आप the entire purpose is to get the best of learnings from Nishant. Yeah. आप हमें hacks बताएंगे, shortcuts बताएंगे, how to make food tasty बताएंगे, right? But please go to your doctor to get the final verdict. कुछ भी ट्राई करने से पहले, कुछ भी नई चीज ट्राई करने से पहले अगर आपको हेल्थ कंडीशन है तो आप प्लीज अपने एक्सपर्ट से ही पूछिए. But use this as a trend, use this as the knowledge that we can go with. Absolutely. Just a little thing, and we'll get started. I need to introduce who Fam Health is. Fam Health का full form है Family Health. हम लोग सबको जोड़ने के मकसद से निकले हैं. We're a startup right now. What we're doing is making sure that we've got the best of experts, including yourself, who will help us explain to us कि हमें क्या follow करना चाहिए, क्या नहीं follow करना चाहिए. Cancers are unfortunately not so far away. Diabetes हर एक घर को हो रही है. So even if you're young kids and you're into potato chips and French fries, please watch this because you know what? It's only going to get worse over time. So let's be a little better armed. 3 चीजें मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी. सबसे पहले तो मतलब actually another thing I need to let you know is हमारा सारा content, all our programs are coming on Tata Sky as a TV service. 510, that's 510. That's where chef, I do a lot of recipes there. Please do watch it. Yeah, and if you miss and you don't have a Tata Sky connection, the 3 things you can actually follow us on is, one is Facebook, where you are currently. Please like our page. That's very important for all of us to know exactly कितने लोग देख रहे हैं, क्या जानना चाहेंगे. The second bit is of course you. नमस्कार. आज परिणाम बिहार की मिट्टी की खुशबू और कश्मीर की मिट्टी की खुशबू. तो बड़ा ही सुंदर समा रहा. हमारी गाड़ी जो है अपने देश में घूम रही है
वहाँ की मिट्टी को पहचान रही है, वहाँ की आबो हवा को पहचान रही है, और वहाँ के जो लोग हैं उनको हमने एक मौका दिया कि अगर वो जानते हैं तो वहाँ की मिट्टी की खुशबू अपने खाने के साथ हमारे सामने प्रस्तुत करें और सबके साथ साझा करें, और अगर नहीं जानते हैं तो बेहतर तरीके से जान जाएं। और इस मुहिम में हमारे साथ 4 बेहतरीन शेफ़ जुड़े, जिसमें से आज हमारे साथ क्योंकि बिहार है और कश्मीर है तो शेफ़ निशांत चौबे और शेफ़ राहुल वाली। तो शेफ़ निशांत चौबे, जिनका आप अभी एक वीडियो देख रहे थे, फैम हेल्थ की तरफ से था, जिसमें घरेलू नुस्खों के बारे में बात हो रही थी। हम समय पर आप लोगों को ये वीडियो साझा करते रहेंगे, लेकिन शेफ़ को इंतज़ार नहीं कराते हैं और उनको जोड़ते हैं अपने साथ और सुनते हैं कि उनको कैसा लगा और किस तरीके से पार्टिसिपेंट्स का काम उनको अच्छा लगा और क्या वो आगे देखते हैं, क्योंकि शेफ़ जड़ से जुड़े हैं, बैक टू रूट्स के साथ बहुत अरसे से जुड़े हुए हैं। चौबे, नमस्ते, स्वागत। हाँ, नमस्ते बबीता जी, कैसी हैं आप? बहुत बढ़िया, आप कैसे हैं? बस बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, वेरी गुड टू सी यू। अभी आप बोकारो में हैं? जी, मैं यहीं पर हूँ अभी। अच्छा, और क्या चल रहा है आपका? आपके प्रोजेक्ट पे काम चल रहा होगा बहुत? कुछ नहीं, हाँ वही है, उसी रिसर्च पे कल हमने करीबन 14 नए डिशेस किए और मुझे बहुत मजा आ रहा है इस रिसर्च के बारे में। जब वो पिक्चर्स आएंगे तो मैं आपको प्लीज शेयर करूंगा, आप सबके साथ शेयर करें। और उसमें मैं कुछ रेसिपीज जो कॉन्टेस्ट थे तो उनसे भी इंस्पायर हुआ और उसको भी मैंने यूज किया, बिकॉज अगेन वो जड़ से जुड़ी हुई रेसिपीज हैं। तो सो इट इज एन अमेजिंग कॉन्टेस्ट। मुझे बहुत मजा आया इसको जज करने में और लोगों से बात करने में, उनके बारे में जानने में। और ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज भी है कि मैं यहाँ पर आया और मुझे वो प्रोजेक्ट मिला और एक छोटा सा काम भी मिला। और ये सच बात है, हम अपनी चीजों का बिल्कुल आई डोंट थिंक सो वी रिस्पेक्ट आवर ओन स्टफ, जो कि बाहर के लोग ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, तो हमें भी कहीं ना कहीं उस चीज की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। आई थिंक आई रियलाइज्ड इट वर्किंग with the I mean working on the research that I am doing right now. अचानक शेफ क्या हुआ कि सभी का ध्यान गया स्वास्थ्य की तरफ और हमारी संस्कृति की तरफ, और इस चीज़ में चूंकि विदेशी जो है वो रिसर्च कर रहे हैं बहुत समय से और देख रहे हैं कि कौन सी चीज़ सही है, तो चूंकि भारतीय संस्कृति की हर चीज़, हर जो हमारे रिचुअल्स होते हैं, खाने से लेके पहनावे से लेके हमारी पूजा पाठ तक, सबके पीछे ज्ञान है, और ज्ञान, विशेष ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। तो ये जो लोगों को बाहर समझ में आ गया, अपने लोगों को थोड़ा सा और हमें पुश करना है ताकि हम उसको पुख्ता कर सकें। शेफ, आज हमने आपको जोड़ा है क्योंकि आज परिणाम दे रहे हैं स्टेट फाइनलिस्ट का, लेकिन आप लाइव मत बताइएगा रिजल्ट, क्योंकि उसका मैंने वीडियो बनाया हुआ है, उसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। तो हमारे जो कंटेस्टेंट्स थे और आप एज जूरी आए और हमारे साथ 3-4 दिन तक जुड़े रहे, तो आपको कैसा लगा शेफ? क्या बेहतरी, क्योंकि अगले जो हम 4 प्रदेश लेकर आ रहे हैं उसमें थोड़ा और अच्छी तरीके से उसको हम प्रस्तुत करेंगे, लेकिन आपको क्या लगता है कि कंटेस्टेंट्स का काम देख के आपको लगा कि उनको अपनी संस्कृति के बारे में कुछ, एक तो कुक राइट ईट राइट मूवमेंट से हम काफी कुछ उनको सिखा रहे हैं, निर्देश भी देते रहते हैं, बट आपको क्या लगता है कि कहाँ पे हम और अच्छा कर सकते हैं या कहाँ पे अच्छा किया? देखिए, अब आई थिंक मुझे ये लगता है बबीता जी कि हम एक कॉन्टेस्ट में उस प्रांत को नहीं आई मीन जस्टिफाई नहीं कर सकते। आई थिंक एक, अगर आप बिहार देखें या झारखंड देखें या उड़ीसा, बंगाल, ये प्रांतों में ही प्रांत है। इतनी ज्यादा यहाँ पर सभ्यताएं हैं, इतनी ज्यादा डिफ्रेंसिएशन है लोगों में। शायद नॉर्थ वाले साउथ की चीजें नहीं खाते, साउथ वाले ईस्ट की चीजें नहीं खाते। तो आई थिंक बबीता जी, नेक्स्ट वन व्हाट वी शुड डू इज वी शुड एक्चुअली डिवाइड इट, कि हम नॉर्थ, साउथ, थोड़े ईस्ट और वेस्ट की भी बातें करें, बिकॉज उसमें बहुत अंतर है जी। शेफ, हम सारे स्टेट्स, उस चीज को हम उस प्रदेश के बारे में नहीं जान सकते। शेफ, हम सारे हाँ, बिल्कुल। तो जी, तो मैं वही बोल रहा हूँ, अगर हम स्टेट्स में भी प्रांतों की ओर जाएं और प्रांतों की जैसे बांट दें और वहाँ की भी संस्कृति को आगे लेके आए, शायद हम गाँव की ओर अगर थोड़ा अग्रसर हो और उनको भी एक अपॉर्चुनिटी दे, उनके गांव की चीजों को लेके आए, तो ये बड़ी मिट्टी की खुशबू की असली महक हमें शायद वहां पर पता चल सकती है। शेफ, हम तो ये काम आप कर रहे हैं और हम कर रहे हैं, मैं कर रहा हूँ, लेकिन आपको ये बताएं कि ये बहुत बड़ा हमारे लिए चैलेंज है, क्योंकि लिट्टी चोखे से आप देखिए ऊपर लोग आ ही नहीं पा रहे हैं। और अभी यूपी का हमने जब कॉन्टेस्ट के लिए ऑडिशन राउंड किया
तो सभी कंटेस्टेंट्स ने सिर्फ फरे भेजे हैं, फरे फा से बोलते हैं फरे, तो मतलब राइट फरे वो कहीं ना कहीं बिल्कुल भटक चुके हैं। वेस्ट नॉर्थ साउथ ईस्ट एक ही स्टेट का तो आप छोड़ ही दीजिए, वो अगर उनको पूरा जनरलाइज भी बता दे तो यही हमारी कोशिश है कि आप उस प्रदेश में घुस जाओ और वहां के कोने कोने को आप देख रहे हैं कि पिछले 5 सालों से हम थीम भी देते हैं और उनको बताते भी हैं कि देखो ऐसे होता है, ऐसे होता है। तो ये कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं कि सभी लोग इन चीजों को समझें, और हम हर दिन एक स्टार रसोई एक्सपर्ट को लेकर आते हैं जो इन चीजों को और बारीकी से बताते हैं। और इट्स ए ग्रेट इनिशिएटिव, और मुझे ये लगता है कि थोड़े इंकरेजमेंट लोगों से भी आनी चाहिए, और ज्यादा लोग पार्टिसिपेट करें, और ज्यादा प्रांतों के लोग पार्टिसिपेट करें। जितने पार्टिसिपेशन होगी उतना और मजा आएगा। बट दिस इज ए मूवमेंट विच विल लीड टू अनदर मूवमेंट। ये आपने एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है लोगों को। अब लोगों के थ्रू से ही हमें बहुत कुछ नई नई चीजों को देखने का और शायद जज करने का भी मौका मिलेगा, उनसे इंस्पिरेशन लेने का भी मौका मिलेगा। और देखो हम सब आखिर एक ही इकोसिस्टम के, हम सब वी आर ऑल पार्ट ऑफ दिस इकोसिस्टम। तो हमें हमारी सबकी मुहिम यही है कि हमारा इकोसिस्टम स्ट्रांग हो, हमारा एनवायरनमेंट स्ट्रांग हो, और हमारी धरती स्ट्रांग होगा, हमारा कंट्री स्ट्रांग होगा। सो आई थिंक व्हाट यू आर डूइंग इज एब्सोल्युटली ग्रेट। तो मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। मुझे तीसी वाला अभी तक वो रेसिपी बहुत ही अच्छा लगा जो शायद आभा जी ने दिया था। आई जस्ट एडोर्ड, आई मीन मुझे और जो इक्विपमेंट्स यूज हुए, वो जो देसी, जो सिलबट्टे का और ओखल का और चक्की का जो यूज किया गया, उसको देख के बहुत मजा आया। ताजी मेरे पास रियली वर्ड्स नहीं है। जी शेफ, हमारे जो निर्देश होते हैं और हमारी जो मुहिम होती है, प्रतियोगिता होती है, उससे लोग काफी निराश भी हो जाते हैं, और वो बाकी जितने भी प्रतियोगिताएं चल रही हैं, क्योंकि उसमें फ्री होता है, आप कुछ भी करो, कैसे भी करो, तो इस चीज का मुझे बहुत कठिनाई होती है लोगों को मोटिवेट करने में। लेकिन मैं खुश हूँ। मुझे ये लगता है कि 4 लोग भी अगर अच्छे तैयार हो गए तो वो 4 लाख लोग तक तो जाना ही चाहिए। करेक्ट। नहीं देखिए बबीता जी, ये तो वर्चुअल कंपटीशन था। यहाँ तो हम देख के ही आपकी डिशों को समझ सकते थे। जो लास्ट टाइम आपने जो नोएडा में कराया था, उसमें हम टेस्ट करके हमने उसको जस्टिफाई किया था हमारे रिजल्ट्स को। तो अभी तो वर्चुअल का ही टाइम है, तो हम देख के उनको ये कर सकते हैं। अभी जिनको अगर अच्छा नहीं लगा, वी आर वेरी सॉरी, बट दिस इज जस्ट दैट डे, दैट पर्टिकुलर डे आपने ये है। देखो पार्टिसिपेशन इज मोर इम्पोर्टेंट देन विनिंग। कि आप पार्टिसिपेट किए, आप पार्टिसिपेट करते रहिए, और वी आर ऑल देयर टू एनकरेज यू। दिस इज एन एनकरेजिंग प्लेटफॉर्म। हमें यहाँ हार जीत नहीं करना, हमें सबको जिताना है। बट एक वो है कि कॉन्टेस्ट का एक हिस्सा होता है जीत हार, इसलिए हम बता रहे हैं। अदरवाइज सबने तो बहुत ही अच्छा हमारे सामने बहुत ही अच्छे डिशेस बनाए हैं। जी शेफ, हमारी जो पुरानी टेक्निक्स हैं उनके बारे में आपका क्या कहना है? फॉर एग्जांपल ग्राइंडिंग योर मसालाज, फ्रेश स्पाइसेस, और जो आजकल हम इंसिस्ट कर रहे हैं। जी, मैं एक्चुअली हकीकत में अब उस चीज में काम कर रहा हूँ। शायद मैं दिल्ली में जब रहता था अभी कुछ टाइम पहले, तो मुझे शायद उतना ज्ञात नहीं था, बिकॉज मैं बचपन में खाता था, वो मेमोरीज चला गया था। आई एम श्योर कि सबके साथ ही ऐसा होता होगा। बट जब मैं यहाँ पे आया, बांस की टोकरी देख रहा हूँ, सखुआ का पत्ता देख रहा हूँ, कचनार देख रहा हूँ, उसके बाद कोनार साग देख रहा हूँ, और यहाँ की मिट्टी में बना रहे लोग, और मतलब जो भी चीज कर रहे हो बड़ी अर्दनवेयर पॉट्स है, और सिलबट्टा है, लोहा है, तांबा है, कांसा है। लोग बोल रहे हैं कांसा में ये नहीं पकाते। पापा से मैं ये पूछता हूँ कि पापा आपके जमाने में कैसे पकाते थे लोग? अगर वो नहीं था तो तो पापा बोले वो लोहा था, और लोहे में पकाते तो बहुत चमका के रखते थे, उसको इतना चमकाते थे कि वो लगता ही नहीं था कि वो। सो यू नो दीज आर द नॉलेज, दीज आर सम डेफिनेट नॉलेज दैट वी हैव फॉरगॉटन, जो हमें बिकॉज वो इस फास्ट दुनिया में हम कहीं ना कहीं खो रहे थे। तो शायद ये लॉकडाउन तुझको समझा टॉर्चर निकला तू तो यू नो आई मीन जो बोल टीचर रे। तो आई थिंक दीज आर वर्ड्स व्हिच इज एब्सोल्युटली ऑल राइट, एब्सोल्युटली ट्रू। कि अगर मैं इसको टीचर की तरह लूं तो ये मेरे लिए तो टीचर की तरह ही हुआ है। तो मुझे तो सब कुछ वो देखने को मिला है जो कि मैं शायद भूल गया था। अभी मैंने ढेकी में कुटा हुए चावल का माड़ भात बनाया, जो मैंने शूट किया है, उसका टेस्ट ही अलग था।
उसका मैं टेस्ट आपको बता नहीं सकता बबीता। इतना बढ़िया ब्राउन राइस, जो मोटा चावल है उसको ढेकी में कूट के होता और ही उसको है आप शेफ, बात करते हैं, यही तो तो हम कहाँ सबसे है कहते हैं कि वो कहाँ बिल्कुल है, बिल्कुल वो है बिल्कुल कहाँ, वो खत्म हो गया। बिल्कुल। तो मेरी कोशिश तो मैं अब तो मैं कर ही रहा हूँ उस चीज को, तो मैं तो बहुत आपको कॉन्फिडेंस के साथ वो कहूंगा कि दिस इज मच बेटर देन व्हाट इज वेस्टर्नाइज्ड राइट नाउ। बिल्कुल शेफ, आपको याद होगी हमारी हमारी बातचीत वेदा में 2 साल पहले कि किस तरीके से मैंने मिस्टर अग्रवाल को हमारी लड़ाई तक हो गई थी और आप वहां पे बैठे हुए थे, जो टिफिन कैरियर वो मिट्टी का बना रहे थे। मैं तो सब छोड़ छाड़ के इसी लाइन में घुस गई कि हमारी जो रसोई है अगर वो सही हो गई तो हमारा स्वास्थ्य अपने आप ठीक हो जाएगा। और इतनी बीमारियां फैली हुई हैं। एक और चीज जो मैं यहाँ पर देखता हूँ, मुझे बहुत आई एम वेरी एंग्शियस टू से कि ये जो सभ्यताएं हैं हमारे साथ, इंडिया इज वेरी ऑर्गेनिक, इट्स ए कंट्री व्हिच इज वेरी ऑर्गेनिक इन द सेंस में यहाँ देखता हूँ कि एक औरत आती है, वो खांची में कुछ साग लेके आती है, खत्म हो जाता है, चली जाती है, उस दिन आपको उसके बाद वो नहीं मिलेगा। आप दिल्ली में रहे या आई मीन मेट्रोपॉलिटन सिटीज में रहे, वहां वो आपको वही चीज सालों भर उपलब्ध होता है। रॉ मैंगो का सीजन खत्म हो गया, अब नहीं मिलता। शरीफा आया, कस्टर्ड एप्पल वो आया, खत्म हो गया, नहीं मिलेगा अब आपको। तो यहाँ वही है, हमें उस सीजनल जो खाना है, जो इंग्रेडिएंट है, इसीलिए शायद यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो नंबर्स है कोरोना वायरस के वो कम है, बिकॉज यहाँ पर लोगों में बहुत इम्यूनिटी है। लोग सीजनल खाते हैं, मोटा चावल खाते हैं, देसी आलू खाते हैं, साग काफी तरह की खाते हैं, जो भी खाते हैं बहुत बहुत हेल्थ से भरपूर होता है। कोई कलर नहीं होता, कोई उसके अंदर इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड शायद मेरे जो आते हैं गांव से बेचने, उनको पता भी नहीं होता होगा शायद क्या होता है वो। बिल्कुल, तो उनको मल्टीप्लिकेशन नहीं है। हाँ बिल्कुल शेफ, आपकी भी मैंने ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी पिछले 2 साल में देखी है, जबरदस्त, हेल्थ को लेके भी और अपनी वेल्थ culinary skills को लेकर भी। So I know that you are very happy with that transformation। और आपकी जो फिटनेस रेजीम जो है आपकी, मैंने आपको देखा है कि आप इतने तेजी से पुशअप्स कर रहे थे, इसका राज क्या है? सब जो हिट है वही, जो फिट है वही हिट है बबीता जी। आई थिंक फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हमें हेल्दी इंडिया अगर बनाना है तो खुद को पहले हेल्दी रखना है। तो वो सबसे पहले मेरे ऊपर अप्लाई होना चाहिए। सबसे पहले अगर आप बोल रही हैं आपके ऊपर अप्लाई होना चाहिए, तब किसी और को हम बताएंगे तो ज्यादा अच्छा है। तो मुझे लगता है कि हमें बहुत जरूरी है इस दौरान फिट रहने का। और आधा घंटा 1 घंटा तो शायद हम अपने शरीर के लिए, अपनी बॉडी के लिए तो दे ही सकते हैं। तो दैट्स एग्जैक्टली व्हाट इट इज, जो आप देखते हैं जो चैलेंज जो चल रहा है। जी बिल्कुल। तो शेफ, मैं अपने आप को भी दिखा के बोलती हूँ क्योंकि मेरा 2 साल में विद पर्सनल लॉस काफी चैलेंजेस आए मेरी बॉडी में, विद मेनोपॉज, 52 इयर्स ओल्ड, बट स्टिल मैं तो यही कहती हूँ कि जितना तुम काम घर में करोगे ना, आपको कहीं कुछ जिम वगैरह जाने की जरूरत नहीं है। आई एम श्योर पोछा लगाते हो आप, वो कितना बड़ा एक्सरसाइज है आप देखो। बिल्कुल मतलब वो खुद में ही खुद घर का ही काम बहुत बड़ा एक्सरसाइज है। किसी भी फॉर्म का एक्सरसाइज जरूरी है इस टाइम पे। 30 to 40 मिनट्स आप जरूर करें। वॉक कर ले, घर का काम कर ले, पुशअप कर ले, जो कर रहा है वो आधा घंटा 45 मिनट के लिए जरूर करें। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर इम्यूनिटी एक्चुअली। शेफ, हमारे कंटेस्टेंट्स, प्रतियोगी, उनके नाम कोई संदेश? आप सुपरस्टार हो, आप सुपरस्टार हो, आपने बहुत अच्छा काम किया है। और आप इसको ये न समझे कि आप जीत गए तो आप ये हो। आप रिसर्च करते रहे और डिशेस को निखारें और चीजों को हमारे सामने लेके आए और लोगों को प्रोत्साहित करें कि वो भी इस मुहिम से जुड़े। और जो हमने आपको संदेश दिया है आप लोगों तक पहुंचाए। I think that's exactly, I think you guys have done very well. Congratulations. Thank you so much, sir. Thank you। और हम आपको अपने साथ जोड़े रखेंगे, आपको परेशान करते रहेंगे। बहुत धन्यवाद। Anytime, my pleasure. Thank you and all the best. Thank you, Thank you। तो ये थे शेफ निशांत चौबे, और अब हम शुरू करते हैं। बिहार का जो रिजल्ट है वो आपको दिखाएंगे कि बिहार की जो मिट्टी की खुशबू है उसमें क्या हुआ। उससे पहले आप ये वीडियो देखिए। मिट्टी की खुशबू राष्ट्रीय रेसिपी कॉन्टेस्ट, एक ऐसा कॉन्टेस्ट जो कि कहीं गुम ना हो जाए के मेकर्स द्वारा लाया गया है। बात वही, एक नया अवतार लेके ऑनलाइन है,
लॉकडाउन है और इस समय को उसी चीज़ को, उसी अवेयरनेस को और आगे बढ़ाते हुए, दोस्तों कोई चीज़ गुम कैसे होती है जब उसका ध्यान नहीं रखा जाता है, कोई चीज़ खो कैसे जाती है जब हम उसके बारे में सतर्क नहीं होते हैं। इसी तरीके से हमारी परंपरा, हमारी संस्कृति, हमारी धरोहर है, उसकी बहुत सी ऐसी चीज़ें जिनके पीछे विज्ञान है, जिनके पीछे समझ है, जिनके पीछे दवाई है, जिनके पीछे शरीर है, जिनके पीछे ब्रह्मांड है, और उन सब के आगे है हमारा खान पान। हमारी खान पान हमारी संस्कृति के अनुसार की होनी चाहिए। वो जब बदल जाती है और दिन प्रतिदिन बदली रहती है तो विकार आते हैं। उन विकारों से हम दूर रहें, यही पहल है जड़ से जुड़ने की, बैक टू रूट्स की, हमारी NGO लेट्स गिव बैक की। और इसी दौरान हमने एक ऐसा कॉन्टेस्ट, एक ऐसी प्रतियोगिता लॉन्च की ऑनलाइन, जिसमें कि लोग दोबारा से जितना प्रचार किया जाए हमारी संस्कृति का, हमारे खान पान का, जिनके बारे में बात नहीं होती है, उतना अच्छा है। तो मिट्टी की खुशबू का 3rd राउंड लेकर हम आ रहे हैं 26 तारीख से। इस राउंड में जो वीडियोस आ चुके हैं, जो लाइव लोगों ने लाइव नहीं किया था, रिकॉर्डेड वीडियोस थे, लेकिन उन्होंने खुद बनाया है, उसके बारे में चर्चा होगी, उसके बारे में बातचीत होगी। और ये पहल हो रही है कश्मीर से। कश्मीर की खुशबू लेकर हमारे पास 5 प्रतियोगी हैं, कंटेस्टेंट्स हैं, और हमारे साथ बेहद खूबसूरत जानकार शेफ़ हैं राहुल वाली, जो कि कश्मीर से ही हैं और जो कश्मीर की कुजीन को लेकर उन्होंने बहुत बढ़ावा दिया है। हमारे साथ हमारे 2 खूबसूरत स्पॉन्सर्स हैं, मदर ऑर्गेनिक और ई-पिकल। सबका स्वागत, प्रतियोगियों का स्वागत। और हमारे कुक राइट ईट राइट जो ग्रुप है, उसमें मैं सबसे निवेदन करूंगी कि साथ दें, प्रोत्साहन दें और सीखें। ये जो प्रतियोगिताएं हैं ये सीखने के लिए हैं। इनसे हमें वो चीज़ें जो शायद आम जिंदगी में नहीं पता चल पाती है वो पता चलेंगी, और उसको लेकर हम आगे बढ़ेंगे। हमारा जो झंडा है वो हमेशा ऊंचा रहना चाहिए। नमस्कार एवरीवन, मेरा नाम शेफ निशांत चौबे है और मुझे सबसे पहले मैं बबीता जी को शुक्रिया कहूँगा जिन्होंने मुझे एक प्लेटफॉर्म दिया ना, जहाँ की मैं जज की भूमिका अदा कर रहा हूँ। और मेरे सामने बड़ी चैलेंजिंग टाइम थी, मुझे बहुत चैलेंजिंग लगा जज करना, बिकॉज रेसिपीज वेर रियली गुड। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट पार्टिसिपेशन इज मोर इम्पॉर्टेंट देन एक्चुअली विनिंग। तो आपने पार्टिसिपेट किया, उसके लिए मेरी ओर से हार्दिक कॉन्ग्रेचुलेशन। एंड आई एम श्योर आप आगे भी पार्टिसिपेट करते रहेंगे और इस मुहिम को आगे बढ़ाएंगे। बट ये जजिंग टाइम है तो मुझे जजिंग करनी पड़ेगी, इसलिए मैं जजिंग करके और मैंने कुछ रिजल्ट्स मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। इसमें मैं 3rd प्राइज जो है वो आभा श्रीवास्तव को देना चाहूँगा, जिन्होंने तीसी और दूध की सब्जी बनाई थी और उन्होंने सिलबट्टे का यूज किया था, जो मुझे बहुत पसंद आया। और आभा जी कांग्रेचुलेशंस, आपको 3rd पोजीशन दिया जाता है। 2nd पोजीशन में है सुनीता शर्मा जी, जिन्होंने बिहार की और झारखंड की, यूपी की इनफैक्ट एक बड़ी ट्रेडिशनल डिश बनाई जो कि लिट्टी होता है, और उसको उन्होंने कंडे पे सेका था, बिकॉज आज के डेट में कंडा नहीं यूज होता। सो इट्स अगेन अ वेरी नाइस थिंग टू सी। तो कंग्रेचुलेशन सुनीता जी, आप रनर्स अप हैं। और फर्स्ट
फर्स्ट पोजीशन जिन्होंने लिया है उनका नाम है जाहिदा परवीन जी, जिन्होंने जुने या जवार की रोटी बनाई थी। बिकॉज जुने और जवार अब लॉस्ट इंग्रेडिएंट है, लोग ज़्यादा उसको यूज़ नहीं करते हैं। आपने बेहतरीन तरीके से उसकी रोटी बनाई और मेरी ओर से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। यू आर द फर्स्ट वन एंड यू वन द चैलेंज। बट अगेन जिन्होंने भी पार्टिसिपेट किया, आप कहीं गुम ना हो जाए, मुहिम से जुड़े रहें और बबीता जी को हमेशा सपोर्ट करते रहें, ताकि वो इस तरह के चैलेंज, नेशनल चैलेंज जो कि रीजनल क्विजीन्स पे होता है, उसको हमेशा आपके पास लेके आए। और बिना आपके सपोर्ट के ये मुहिम पॉसिबल नहीं है। सस्टेनेबिलिटी, लोकल, इस तरह की जो बातें होती है वो इस प्लेटफॉर्म पे होती है, ईट राइट। तो हमें सबको मिलकर इस प्लेटफॉर्म को आगे लेके जाना है। तो दिस वाज जस्ट ए जजिंग, सो मैंने कर दिया। बट अगेन पार्टिसिपेशन जो आपकी रही वो जबरदस्त रही, मुझे बड़े अच्छे रेसिपीज मिले। सो आई वुड लाइक टू कंग्रेचुलेट ईच एंड एवरीवन हु हैव दिस पार्ट। कांग्रेचुलेशंस एंड बेस्ट विशेस। तो हमारे स्टेट फाइनलिस्ट बिहार की मिट्टी की खुशबू हैं जाहिदा परवीन, और उसके साथ ही सभी प्रतियोगी जो द्वितीय और तृतीय स्थान जो है वो सुनीता शर्मा और महिमा आभा श्रीवास्तव का है। लेकिन मैं सभी प्रतियोगियों को धन्यवाद दूंगी कि उन्होंने बहुत अच्छा प्रयास किया। आभा ने बनाई थी तीसी दूधी की सब्जी, महिमा शर्मा ने बनाया था लिट्टी चोखा, मुक्ता जैन ने बनाई थी घुगनी, सुनीता शर्मा ने बनाया था लिट्टी चोखा, सीमा गांधी ने रसियाव, रंजना श्रीवास्तव ने ठेकुआ, रूही नाग ने माखुनी, कविता गोयल ने मूंग दाल की खीर और शालिनी शर्मा जी ने सत्तू का पराठा, और जाहिदा ने बनाई थी जुनई यानी कि ज्वार की रोटी। सबके प्रयास बहुत अच्छे थे, बहुत सुंदर थे। और देखते हैं कि जो स्टेट फाइनलिस्ट हैं उन्होंने क्या बनाया था और क्यों उनको स्टेट फाइनलिस्ट नियुक्त किया गया। बिहारी डिश जुनई की रोटी जो ज्वार के आटे से बनती है, और ये है ज्वार का आटा। इसकी सामग्री मैं आपको पूरी तरह बताती हूँ। इसमें चटनी क्या फ्लेवर में बनेगी, जो अलग अलग स्वाद होगा, उसकी कहानी मैं आपको बाद में बताऊंगी। इसमें ये हरी चटनी जो बनेगी, ये अमरूद की पत्ती, धनिया की जड़ और हरी मिर्च, हरा धनिया, और ये है खटुआ जो नींबू की तरह होता है लेकिन बहुत ज्यादा खट्टा होता है। ये है लाल चटनी के लिए लाल मिर्च, टमाटर, नींबू और लहसुन, भुना हुआ लहसुन। और ये मीठी बनेगी जो व्हाइट कलर की होगी, इसमें गरी, नारियल, और ये है गुलाब की पत्ती, खसखस, काजू, बादाम, और ये मिश्री, और ये थोड़ा सा मावा और मक्खन। ये ब्राउन बनेगी जिसमें मैंने गुड़ और मूंगफली, खजूर ये मिक्स करके ये मैंने पाउडर बना के रखा है। और ये देखिए, और ये है भुट्टा जो कच्चा वाला भुट्टा जाएगा मीठे वाले में, और ये भुना वाला भुट्टा जाएगा हरी वाली चटनी में, जो इसको कूट कर और इस्तेमाल करते हैं ऐसे कूट कर। और ये भुना हुआ लहसुन जो है उसको छील कर उसको भी ऐसे कुचल कर पीस लेंगे, और उसी के साथ सारी ये सामग्री भी पीस लेंगे, और नींबू का रस भी, खटवे का रस भी निचोड़। और ये थोड़ा सा सेंधा नमक इसमें मिलाया है, लाल मिर्च, टमाटर, लहसुन और ये नमक, और इसके साथ जाएगा कच्चे भुट्टे जो कूट कर लेंगे। अब इसको भी कढ़ाई में डालकर थोड़ा सा और ऐसे ही भून लेंगे गैस जला कर। ये देखो हल्का से ऐसे भून लेना है, बिना तेल बिना भून। और ये भुट्टे के जो दाने हैं वो अच्छे से फूल जाएंगे, और जो वाइट जब मुंह में जब दाना आता है तो बहुत टेस्टी सारी चीज़ें और टेस्ट सब मिक्स करके और मैंने भून लिया बिना तेल के ऐसे ही। और इसमें थोड़ा सा बाद में मक्खन डाल दें। इसमें जो भुट्टे के दाने हैं जो बॉइल करके दूध के साथ, और फिर मैंने इस्तेमाल किया कच्चे भुट्टे। इसी कढ़ाई में ये गुड़ और खजूर और मूंगफली ये सब मिक्स करके और थोड़ा सा हल्का सा मध्यम आंच में भूनना है, इसलिए शाइन आ जाए और अच्छे से बाइंडिंग को बिना घी और बिना तेल के ऐसे ही भून लिए हैं। और इसका पानी सूख गया, जिसको मैं निकाल देती हूँ। एक से बनाऊंगी मैं नमकीन, इसमें थोड़ा सा नमक और अजवाइन डाल देती हूँ, और मीठे में डाल देती हूँ हल्दी, और मीठे में थोड़ा सा जो गुलाब जल है वो भी डाल देती हूँ। थोड़ा सा नमकीन में गुलाब जल तो डाल देती हूँ, इससे खुशबू अच्छी है। जब कोई आता है तो अच्छे से अच्छे खाना बनाते हैं, क्योंकि ये बनाई इसीलिए जाती है कि ये पहले के ज़माने में जब सावन में पहली बार मायके से सावनी आती है तो मामा और भाई को लेकर आते हैं, उनके स्वागत के लिए ही ये बनाई जाती है। और इस आटे को अच्छे से बस उतना ही भूनना चाहिए जितना रोटी चाहिए, क्योंकि इसको आटे को भून कर रख नहीं सकते।
हम ये वीडियो कंटिन्यू रखेंगे और शेफ राहुल वाली हमारे साथ जुड़ चुके थे, तो मैंने उस वीडियो को अभी बंद कर दिया था। शेफ राहुल वाली दोबारा से जुड़ रहे हैं और हम उनका इंतज़ार कर रहे हैं। जी, शेफ आ गए हैं। कश्मीर की मिट्टी की खुशबू, जिसमें कि हमारे साथ प्रतियोगी आए। शेफ राहुल वाली एक बहुत ही हुनरमंद, बहुत ही समझदार और बहुत ही शांत रूप से अपना काम करते हैं और पिछले 2 वर्षों से मैं उनको देख रही हूँ निरंतर। वो भी रीजनल कुजीन और भारतवर्ष की जो लॉस्ट रेसिपीज़ हैं उनके ऊपर काफ़ी अच्छे से काम कर रहे हैं और सभी शेफ्स को उन्होंने जोड़ रखा है, क्योंकि कहीं ना कहीं शेफ्स को देख के हम सभी इन्फ्लुएंस होते हैं और जब उनकी तरफ से देखते हैं कि ऐसी पहल हो रही है तो सभी गृहिणियाँ जो हैं, क्योंकि आज सोशल मीडिया पे सब हैं और सब शेफ्स को देखती हैं कि वो क्या क्या पका रहे हैं, तो उनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित होती हैं। तो शेफ राहुल वाली जिनका सेशन चल रहा था और उन्होंने हमारे प्रतियोगियों के लिए वक्त निकाला, उनका हार्दिक स्वागत है। शेफ राहुल वाली, आपका हार्दिक स्वागत है। थैंक यू सो मच। नमस्ते टू ऑल। शेफ, आपका सेशन चल रहा था, क्या कर रहे थे आप? वेबिनार कर रहे मैम मैं जुड़ा हुआ हूँ एक बेसिकली हम काम कर रहे हैं ईट राइट इंडिया पे ही, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो इनिशिएटिव है, तो उसके लिए कुछ सेशंस करते हैं हम। पिछला कुछ 1 हफ्ते पहले मैंने सेशन किया था एक डाइटिशियन के साथ, तो आज एक आयुर्वेदिक फिजिशियन थी, उनके साथ सेशन था। तो ऐसे ही हमारे सेशंस आगे और हैं। तो हमारे साथ कब कर रहे हैं? जब आप कहें, बिल्कुल। देखिए, हम तो सबसे अग्रमी कहा जाएगा कि आप तो 5 साल से देख रहे हैं कि हम तो लोहार की तरह बस ठोक रहे हैं लोगों को। आई वुड लव टू जॉइन एंड बी पार्ट ऑफ दैट सेशन बिकॉज देयर इज सो मच टू शेयर एंड आई कैन बी रियली आई थिंक आई कैन मेक अ डिफरेंस इफ यू फील सो। ये बात तो हो गई साइड में, लेकिन आपको ये बताएं कि मैंने जब इस फेसबुक ग्रुप में लॉकडाउन के बाद ये ग्रुप डेडिकेटेड शुरू किया, क्योंकि पहले तो इवेंट बेस्ड हमारे पेजेस होते थे और ग्रुप्स होते थे और बस अपने जो हमारा कॉन्टेस्ट था उससे रिलेटेड बनाते थे, लेकिन ये इस तरीके का ग्रुप संग्रहण मैंने जो है लॉकडाउन में किया और उसका नाम मुझे नहीं पता था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस तरीके से एक मुहिम शुरू करने वाले हैं या कर चुके हैं कब से। बस ईट राइट मूवमेंट, ERM, मैंने यही नाम रखा और बाद में पता चला कि ये उनकी भी मुहिम है, तो बहुत अच्छा लगा मुझे कि सब एक साथ जुटे हैं। हाँ, ये ईट राइट इंडिया को अब 1 साल हो गया एक्चुअली। जी। और ये FSSAI जो है फूड सेफ्टी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उन्होंने ये शुरू किया था, तो इसको लॉन्च किए हुए। हाँ जी। जी, इनका ये अभियान चल रहा था बहुत पहले से, बट अब जो है उसने बहुत पकड़ ली है और FSSAI जो है पता नहीं, मुझे तो बहुत ज्यादा उस पर विश्वास नहीं है शेफ वाली, और हम चाहते हैं कि कुछ एक ऐसा वो बने सूत्र जिस पे सबका विश्वास बने, तो ये बहुत जरूरी है। तो इन सब बातों पे चर्चा करेंगे बाद में। आज तो हम आपका ज्यादा समय जाया नहीं करेंगे और हम ये चाहेंगे कि आपसे पूछें कि आपको हमारी प्रतियोगिता के साथ जुड़ के कैसा लगा, आपको कंटेस्टेंट्स का काम कैसा लगा। कश्मीर के साथ बहुत ज्यादा लोग जुड़े नहीं, और जो लोग जुड़ते भी हैं बाकी प्रदेशों में भी शेफ मैं देखती हूँ कि डीप नहीं जाना चाहते। देखिए, वो बाकी जितने भी कंट्रीज हैं और वर्ल्ड कुजीन्स हैं उसमें बहुत सारी चीजें कर रहे हैं हमारे होम मेकर्स, लेकिन जब रीजनल कुजीन की बात आती है तो दे आर लिमिटेड टू जस्ट 3 to 4 डिशेस मैक्सिमम, और वही सेम सब बनाते हैं। तो ये बताइए कि इसको कैसे हम चेंज कर सकते हैं, कैसे हम उनके अंदर वो डेप्थ लाएं, सीखने की, घुसने की, पता करने की। पहली बात तो जो आपने पहले पूछा, वैसे आपके साथ जुड़ के तो अब आपने खुद ही कह दिया था स्टार्टिंग में कि हम इतने सालों से जुड़े हुए हैं, तो आपका काम तो मैंने हमेशा कहा है कि इट इज ऑलवेज अप्रिशिएटेड, क्योंकि ऐसे इनिशिएटिव्स लेना कहने में तो अच्छा लगता है, बट उसको एग्जीक्यूट करने में ही पता चलता है कि कितनी मेहनत लगती है। तो इट इज ऑल हैट्स ऑफ टू यू कि आप इसको कैरी फॉरवर्ड कर रही हैं, उसको एग्जीक्यूट कर रही हैं। So it is always, a privilege and honor to be associated with such initiatives. Secondly, जहाँ तक कश्मीर के जो कंटेस्टेंट्स थे जिन्होंने पार्ट लिया था, भले ही 5 या 6 ही थे, बट कहीं से शुरुआत हुई, which is good.
यू नो। तो अगर आज 6 है तो होपफुली नेक्स्ट टाइम 12 होंगे, फिर और बढ़ेंगे। तो कंटेस्टेंट्स थे वो ठीक थे, अच्छे थे, बट जैसे आप कह रहे हैं कि वो डेप्थ में नहीं जाना चाहते हैं, सीखना नहीं चाहते ज्यादा, दैट इज बिकॉज मुझे लगता है कि जो ज्ञान है, जो नॉलेज है, वो बहुत लिमिटेड है उनके पास, और या तो वो राइट सोर्सेज से अप्रोच नहीं कर पा रहे हैं कि नॉलेज कहाँ से गेन करें। क्योंकि आज के टाइम में आप गूगल पे या यूट्यूब पे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, बहुत सारे वीडियोस हैं जो लोग डाल देते हैं बना बना के, बट उसकी ऑथेंटिसिटी नहीं रही कहीं। पहले क्या था कि आज से 10 साल पहले या 15 साल पहले, जब इतना ये टेक्नोलॉजी हाई नहीं थी, नॉर्मल खाली डायलिंग फोन्स होते थे, तब लोग एक्चुअली शेफ से मिलते थे तो एक एक्साइटमेंट रहती थी, एक वो सीखने की इच्छा रहती थी। आजकल तो आप एक बटन दबाएं तो शेफ, कोई भी शेफ आपके फोन पे प्रकट हो जाएगा 1 मिनट में, और हजारों रेसिपीज दिखा देंगे। बट जहां तक ऑथेंटिसिटी है, लोगों ने ट्रैवल करना कम कर दिया है इंडिया में। अगर आप देखें, वो भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जो जहां तक मुझे लगता है कि अब्रॉड इंटरनेशनली ट्रैवल करना बहुत ही एक ट्रेंड बन गया है। ठीक है, इट इज गुड टू ट्रैवल अब्रॉड, एक्सपीरियंस के लिए, नॉलेज के लिए, ठीक है, अच्छा है, बट आई थिंक जो इंडिया में ट्रैवल नहीं कर रहे हैं, जो इंडियन स्टेट्स में, दूसरे स्टेट्स में जाके ट्रैवल नहीं कर रहे हैं, वो बहुत कुछ लूज कर रहे हैं। वहीं पे जो कल्चर है इंडिया का, इट इज नॉट ओनली कल्चर, द फूड कल्चर, द एथनिक कल्चर, द ट्राइबल कल्चर, बहुत कल्चर्स हैं, और टू अंडरस्टैंड दैट यू हैव टू ट्रैवल टू द प्लेस। ट्रैवलिंग भी बहुत बड़ा एक इशू है कि लोग नहीं कर रहे, और ईज हो गया है लोगों का अब कि सब कुछ घर पे ही चाहिए। एक ऑनलाइन डिलीवरी सिस्टम बन गया है, अब तो खैर खाने का भी हो गया है, बट तो सब कुछ ऑनलाइन चाहिए, कपड़े से सुई से लेकर आप एक डाइनिंग टेबल तक ऑनलाइन मंगा सकते हैं। तो फिर क्यों बाहर जाना, और क्यों इतनी एफर्ट करना। और वो एक स्पेशली फॉर हाउस वाइफ्स, मैं ये कहना चाहूंगा कि उनको तो खैर टाइम नहीं मिलता, अपने घरों के काम से ही वैसे इतने बिजी रहते हैं, बट जहां तक टाइम मिले, अगर मिले उन्हें और इंटरेस्टेड हैं, तो किताबें खरीदें खाने की, जो एक अच्छे ऑथर्स ने लिखी हो, जेन्युइन ऑथर्स हो, और उनको पढ़े, उनकी रेसिपीज फॉलो करें। बुक की रेसिपीज इज मच बेटर देन वीडियो रेसिपीज। ठीक है, वीडियो में आपको आइडियाज मिल सकते हैं कि कटिंग कैसे करनी है, क्या करना है, कैसे करना है, बट जहां तक एक बुक की रेसिपीज होती हैं, वो एक रिटन है, रिटन प्रूफ है आपके पास कि आप एग्जैक्टली वही फॉलो कर रहे हैं, और ट्राइड एंड टेस्टेड रेसिपीज होती हैं वो पुराने जमाने की। तो इट इज बेटर कि अगर कोई कश्मीरी खाना बना रहा है, स्पेशली देयर आर फ्यू बुक्स जो कश्मीरी खाने पे भी लिखी गई हैं, उसमें भी रेसिपीज हैं, तो वो बुक्स खरीद सकते हैं, ऑनलाइन ही खरीद सकते हैं, अमेजोन पे भी अवेलेबल है वो बुक्स, वो खरीद लें और उसे पढ़ें। उसमें थोड़ी बहुत हिस्ट्री भी है, और थोड़ा बहुत रेसिपीज भी हैं, और कुछ इंग्रेडिएंट्स होते हैं, एक लैक ऑफ इंग्रेडिएंट्स भी होता है कि आप कहीं और हैं और इंग्रेडिएंट आपको नहीं मिल पा रहा है, तो आप उसका ऑल्टरनेट ढूंढने लग जाते हैं, और उससे भी थोड़ा रेसिपी चेंज हो जाती है। तो ओवर द टाइम ये सारे फैक्टर्स हैं जो एक ऑथेंटिसिटी को थोड़ा मेंटेन करने में प्रॉब्लम आती है। मैं तो ये कहूंगा कि जो जिस रीजन का है, चाहे वो कश्मीर से है या अगर कोई मध्य प्रदेश का है, कहीं का भी है, सबसे पहले तो वो अपने उस रीजन का खाना सीखे, क्योंकि अगर आपको अपने ही रीजन का खाना नहीं पता, तो आप दूसरे रीजन का खाना बना के कोई फायदा नहीं, क्योंकि आगे जो फ्यूचर आने वाला है वो यही है कि आप अपना खाना कितना जानते हैं। जी, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। शेफ, सारे प्रतियोगी जो अगले 4 प्रदेश हमने अनाउंस किए हैं, सबको यही कह रही हूँ कि आप अपना प्रदेश चुनिए, आप अपने प्रदेश की मिट्टी को पहचानिए, आप दूसरे प्रदेश में मत लांघिए, जंप करने की जरूरत नहीं है। तो 2 चैलेंजेस आते हैं शेफ। एक आता है कि लोग पढ़ना नहीं चाहते हैं, किताबें तो छोड़ दीजिए, एक नॉर्मल सा व्हाट्सएप के ऊपर संदेश, बहुत कम लोग हैं, मतलब सभी नहीं, लेकिन अधिकतर 99% हम लिख लिख के हार जाते हैं, और वो ना पढ़ने के लिए मतलब मंजूर नहीं होगी उनको पढ़ना। एक चैलेंज ये है, और दूसरा चैलेंज है कॉन्टेस्ट की भरमार, और वो कॉन्टेस्ट जिसमें कि थॉट जो है वो ये है कि कुछ भी बना लो,
कैसा भी बना लो, बस आ जाओ, पार्टिसिपेट कर लो। तो जहाँ पे जो होम मेकर्स हैं उनको लगता है कि कैसे भी कर लो, कुछ भी कर लो, फ्री विल स्पिरिट है, तो उनको आसान लगता है। और ऑब्वियसली हमारे जो भी बातें होती हैं उसमें कहीं ना कहीं काफी रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, सीख होती है, एक प्रोसेस होता है, टेक्निक होती है, तो लोग बिदक जाते हैं। उनको लगता है कि भाई ये तो बड़ा टेट्राम वाला काम है, इसको छोड़ो, वहां चलो। जबकि जो उद्देश्य ये है कि जीवन में आगे जो अपने समाज के लिए वो जो सीख कर और छोड़ के जाएंगे, वो आज नहीं कल सीखेंगे, लेकिन हम चाहते हैं जितनी जल्दी हम ग्रास्प कर लें इन चीजों को उतना हमारे लिए अच्छा है। तो इसके बारे में थोड़ा सा शेफ बताइए कि जो व्यूवर्स आपको देख रहे हैं कि उनको क्या सोचना चाहिए, क्या करना चाहिए, और जो होस्ट हैं वो भी कुछ लोग बदलाव आ रहा है, ऐसी बात नहीं है कि काफी लोग, जैसे मैंने देखा है किचन ऑफ फ्लेवर्स में शेफ मुरली हैं, और जो भी उनकी होस्ट हैं उन्होंने भारत भ्रमण करके, जैसे हम कहीं घूमना हो जाए मिट्टी की खुशबू कर रहे हैं, वैसे उन्होंने भारत भ्रमण शुरू किया। कम से कम भारत भ्रमण तो शुरू हुआ, तो अच्छा लगा कि कहीं ना कहीं भारतीय और उस तरीके के संस्कृति की बातचीत शुरू हुई है, कर रहे हैं। तो इसी तरीके से हम चाहते हैं कि बाकी जगह भी थोड़ा सा और डेप्थ में वो कंटेस्टेंट्स को मोटिवेट करें। मैम, सबसे पहली चीज जो आती है खाने के मामले में वो है पैशन। पहले तो पैशन हो, और हमारी प्रॉब्लम क्या है इंडिया में कि वो एक चलता है एटीट्यूड जो आ गया है खाने के अंदर भी, तो वो एक लाइफस्टाइल बन गया है, तो हमने वो चलता हुआ एटीट्यूड अडॉप्ट कर लिया है इस तरीके से कि अब हम कहीं का भी खाना कहीं में भी मिक्स करके उसको फ्यूजन का नाम दे के आगे चला रहे हैं। तो एक वो है। सेकेंडली, आई थिंक इट इज इम्पोर्टेंट कि लोग ये समझें, जो भी कॉम्पिटिशन्स में जाना अच्छी बात है, ठीक है, बट एक इनोवेशन के नाम पे आप एक ट्रेडिशनल रेसिपी को खराब ना करें, और ओवर गार्निशिंग कर देते हैं लोग। कुछ लोग ऐसे हैं जो मतलब डिश इतना छोटा बोल होगा लेकिन उसके इर्द गिर्द सारी कटी हुई कच्ची सब्जियां रखी जाएंगी दिखाने के लिए, तो वो एक फूड वेस्टेज भी है और ओवर गार्निश भी है। तो ये एक क्या कहूंगा मैं इसको, दिखावा, मतलब ये दिखावा करना कि खाना बहुत अच्छा दिख रहा है, वो ज्यादा जरूरी नहीं होता है रीजनल फूड। बहुत सही कहा आपने शेफ। और आजकल होम मेकर्स तो प्लेटिंग, खाना क्या पका है उससे मतलब नहीं, प्लेटिंग, और सब इधर उधर फैला देंगी, चटनी डाल देंगी। मैम अभी मैं एक चीज कहना चाहूंगा इसे, प्लेटिंग आपने कहा कि एक बहुत सीनियर शेफ है, उनके वर्ड्स हैं ये। उन्होंने कहा था कि आज तक इंडिया में लोग कोविड से पहले तक सारे प्लेटिंग पे ध्यान दे रहे थे, चाहे वो कितने भी बड़े बड़े शेफ्स थे या जो भी थे, प्लेटिंग पे ध्यान दे रहे थे। लेकिन अब क्या होगा ट्रेंड कि अब प्लेटिंग में नहीं, अब ध्यान दिया जाएगा न्यूट्रिशन पे। बिल्कुल। तो अब पॉइंट ऑफ मतलब दिखने में अच्छा है, ठीक है, बट अब प्लेटिंग पे उतना जोर नहीं दिया जाएगा जितना कि न्यूट्रिशन पे जोर दिया जाएगा। तो बेसिकली न्यूट्रिशन है कहाँ? न्यूट्रिशन वहां है जो आपके नॉर्मल एक टिंडे की सब्जी और एक लौकी की सब्जी में है न्यूट्रिशन। आपका न्यूट्रिशन कोई एक फैंसी वो डॉट्स बना के नहीं आने वाला है प्लेट पे, तो ऑथेंटिसिटी आपको कैसे मिलेगी एक रेसिपी की? आपको ऑथेंटिसिटी वहीं से मिलेगी जो आपके ट्रेडिशन, फैमिली ट्रेडिशन आगे बढ़ा है। क्योंकि अगर आपने इंटरेस्ट नहीं लिया आज, तो आई थिंक जो आपकी नेक्स्ट जनरेशन आएगी अगले 10 साल में जब वो बड़े होंगे, तो आई थिंक उन लोगों को सिर्फ 3 ही चीजें आने वाली हैं, एक ऑनलाइन ऑर्डर करना, और एक मैगी बनाना, और एक पानी उबालना, बस। इसके अलावा और कुछ नहीं आने वाला। सही बात है शेफ, सही बात है। और दालों को भी बच्चे ग्रीन दाल, रेड दाल, येलो दाल से पहचानते हैं, तो इसमें उनकी गलती नहीं है, गलती हमारी। पेरेंट्स जब बाहर खाना खाने जाते हैं, क्या खाएंगे? हम पीली दाल खाएंगे, बिल्कुल। मतलब दालों के नाम तक नहीं पता, पेरेंट्स को भी नहीं पता। सही बात है, सही बात है। शेफ, हमने वीडियो बनाया है कंटेस्टेंट के रिजल्ट्स का, इसलिए आप रिजल्ट्स मत बताइए, लेकिन आप मिट्टी की खुशबू का जो ये कॉन्टेस्ट हो रहा है, अगले 4 प्रदेश लेकर आ रहे हैं,
और जो आप जिस डोमेन के थे, कश्मीर की मिट्टी, तो इन तीनों के लिए हम ये चाहते हैं कि अगले सत्र में हम वैसे और बहुत बेहतर तरीके से करने का प्रयास करें। और आपकी तरफ से कोई टिप्स, और दूसरा हमारे कश्मीर के जो प्रतियोगी हैं उनके लिए कोई संदेश? टिप्स तो मैं यही देना चाहूंगा सब लोगों को बेसिकली कि जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि पहले आप अपनी रिसर्च करें ढंग से, उसे किसी से क्रॉस चेक कराएं जो उस रीजन का हो। जरूरी नहीं है मैं हूं, और भी बहुत सारे लोग हैं, शेफ्स हैं, या आपके आस पड़ोस में या आपकी सिटी में भी अगर कोई कश्मीर से रह रहा है, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, उनसे ऑथेंटिसिटी ले सकते हैं, और आई एम श्योर वो मना नहीं करेंगे। एंड इसे क्रॉस चेक करना एक रेसिपी को बहुत जरूरी है, क्योंकि आप आज के टाइम पे ऑनलाइन बना रहे हैं, ये बहुत लोग देखेंगे, अगर वो आपको फॉलो करेंगे तो एक रॉन्ग मैसेज आगे जा सकता है, एक रेसिपी पूरी एक खराब रेसिपी आगे जा सकती है। तो आई मीन इसमें कोई हर्ज नहीं है, गलतियां सबसे होती हैं, मेरे से भी हुई हैं जब मैंने सीखना शुरू किया। गलतियां होना गलत नहीं है, लेकिन उन गलतियों से आगे ना सीखना गलत है, खाने के मामले में स्पेशली, क्योंकि वो एक गलत ट्रेडिशन आप आगे लेके जाएंगे। तो पहली बात तो ये है। दूसरी बात है कि आई थिंक इंडियन खाने को बाय इंडियन खाना मेरा कहने का मतलब है घर का जो इंडियन खाना है उसको गार्निश या ओवर गार्निश करने की जरूरत है ही नहीं हमें जी शेफ, क्योंकि स्पेशली जरूरी नहीं है, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि अगर आप एक सुंदर से अच्छे से नॉर्मल घर के बोल में उसको अच्छी तरह डाल लें और उस पर बस थोड़ा सा आप हल्का सा धनिया ही डाल दें, वो भी बहुत है, इससे ज्यादा गार्निश की जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल सही। और मैं कभी कोई चुप हो जाती हूँ क्योंकि होम मेकर्स इतनी प्रभावित हो चुकी हैं प्लेटिंग, और लोग, क्योंकि देखिए शेफ इंडस्ट्री में भी यही बात कह रहे हैं, वो किसी और पर्पस से कह रहे हैं, आंख से खाना, नाक से खाना, वो सब ठीक है, लेकिन अगर आपकी जो तश्तरी है उसमें ताजा खाना, ताजे रंग, ताजा मसाला, गरम गरम खाना आया है, तो उसका जो प्लेटिंग और उसका जो खुशबू है वो अपने आप में अद्भुत होती है, उसका स्वर्ग का आनंद होता है। तो आपको कोई खास प्लेटिंग, हाँ कोई बोरिंग सी चीज है उसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आप उसका कुछ भी बना दीजिए, कोई भी चित्रकारी कर दीजिए, लेकिन जो खाना आपका पौष्टिक है। अभी जैसे हम हर दिन एक अपनी स्टार रसोई एक्सपर्ट को लेकर आते हैं, तो अभी रीना मुखर्जी ने सिखाया था पेठे की सब्जी, जिसमें बेसिक नारियल और मस्टर्ड पेस्ट के साथ, अगर आप देखने को कहिए तो वो देखने में बिल्कुल लगेगा जैसे बीमारों की सब्जी है, लेकिन आप जब वो आएगी और आप उसको खाएंगे और थाली में रख के दाल के साथ, थोड़ा चटनी हो गया, थोड़ा एक तीखा हो गया, सारे 6 एलिमेंट्स के साथ, तो उसका स्वाद और आपके अंदर बदन में जो जा रहा है वो निराली आपके लिए, स्वास्थ्य के लिए होगी चीज। बिल्कुल। तो शेफ आप यहाँ रहिएगा अगर रह सकते हैं, क्योंकि हम बड़ा खूबसूरत वीडियो चलाने वाले हैं जिसमें कि रिजल्ट आपके नाम से है, और मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। आपसे शुक्रिया है सभी व्यूअर्स की तरफ से, प्रतियोगियों की तरफ से, और हम आपको अपने साथ बुलाते रहेंगे, परेशान करते रहेंगे। नहीं, थैंक यू सो मच मैम, एंड आप जब बुलाएंगे आ जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल 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 शेफ, रेडी फॉर खाने के लिए तो रेडी हैं। थैंक यू सो मच शेफ, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच।
नमस्कार, मेरा नाम शेफ राहुल वाली। पहले तो मैं बबीता जी का बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा कि वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म लेके आए हैं मिट्टी की खुशबू बैक टू रूट्स, जिससे बहुत सारी लेडीज़ ने अपने रीजनल खाने को और अलग अलग स्टेट्स को चूज़ करके अपने घर के खाने को बाहर निकाला है और दुनिया के सामने जो प्रस्तुत किया है उससे ये पता चलता है कि इंडियन खाने की ताकत और उसका जो न्यूट्रिशन है बहुत ही बढ़िया है। स्पेशली कोविड के टाइम पे ऐसा कंपटीशन होना एक ब्लेसिंग है। तो थैंक यू सो मच बबीता जी। सेकेंडली, थैंक यू सो मच टू ऑल द पार्टिसिपेंट्स जिन्होंने भी पार्ट लिया। मैं कश्मीर स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा था एज अ जज और पार्टिसिपेंट्स ने बहुत ही बढ़िया काम किया, बहुत ही अच्छे डिशेस बनाए उन्होंने, बहुत मेहनत की, ट्रेडिशनल को अपनी कुकिंग ट्रेडिशन को मेंटेन करते हुए मिट्टी के बर्तन में खाना बनाया, चूल्हे का उपयोग किया, विच वॉज वेरी वेरी इनकरेजिंग एंड आई एम श्योर कि जो भी उन वीडियोस को देखेंगे उन्हें बहुत ही एक इंस्पिरेशन मिलेगी कि वो भी ऐसा कुछ करें। और फ्यूचर खाने का यही है कि आप स्वस्थ खाएं, अच्छा खाएं और सीजनल खाएं, फ्रेश खाएं। फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली आप कहें, हमें एक विनर चूज़ करना ही पड़ता है कंपटीशन में, बट दैट डज नॉट मीन कि बाकी लोगों का मेहनत बेकार गई है। उनने भी बहुत अच्छी मेहनत की है, अच्छा खाना बनाया है, बट एक अलग से एक पॉइंट का कुछ फ़र्क रह जाता है विनर्स के बीच में। तो इसे नज़र रखते हुए जो हमारे सेकंड पोजीशन पे आए हैं वो हैं रेशमा नाज जी, जिन्होंने बनाया था शुफ्ता। मैनी कंग्रेचुलेशंस रेशमा जी, एंड आई होप यू डू वेरी वेल एंड कैरी फॉरवर्ड अपना कुकिंग पैशन। जो फर्स्ट आए हैं कश्मीर स्टेट के कुकिंग में वो हैं मिस रज़िया लोहानी जी, जिन्होंने वर बनाया है, वर राइस, जो बहुत ही एक ट्रेडिशनल राइस है और ओकेजन्स पे बनाया जाता है। एंड इट वाज अ गुड रेसिपी, अ गुड ट्राई, बट very well executed and very well presented. Many congratulations रज़िया जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का कि आपने अपना समय निकाल के इस कंपटीशन में पार्ट लिया, एंड थैंक यू सो मच फॉर doing all your hard work and efforts. Lastly again, thank you so much to Babita ji for having me there as a judge for Kashmir State, and I'm looking forward for many more such events in future, and it's always a pleasure to be a part of your initiatives. Thank you so much. God bless. Take care. बिहार की मिट्टी की खुशबू के विजेताओं को बहुत बधाई, बहुत मुबारकबाद। सभी का प्रयास बहुत सुंदर रहा। जाहिदा परवीन जी, सुनीता शर्मा जी और आभा श्रीवास्तव जी, आपको शेफ ने चुना और उसके लिए शेफ निशांत चौबे जी, कश्मीर की मिट्टी की खुशबू के विजेताओं को बहुत बधाई। सभी का प्रयास सुंदर, सराहनीय। रज़िया लोहानी जी और रेशमा नाज जी, आपको शेफ ने चुना और शेफ राहुल वाली साहब और ऑर्गेनाइज़र बबीता जी का बहुत बहुत शुक्रिया और उनको बहुत बधाई। मदर ऑर्गेनिक की टीम की सारी तरफ से आप सबको बहुत शुभकामनाएं और बधाई। मिट्टी की खुशबू और बबीता जी को डी पिकल नेशन की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। बबीता जी, आप ऐसे ही अच्छे अच्छे इवेंट्स कराते रहिए और हम सब लोगों को मिट्टी की खुशबू और हमारे व्यंजनों के लिए जो एक जागरूकता है उसको ऐसे ही फैलाते रहिए। तो ये थे बिहार और कश्मीर के परिणाम। लेकिन मैं कश्मीर के रेशमा नाज शुफ्ता जिन्होंने बनाया उनको बधाई। रेशमा वर्मा ने रोट बनाया, बहुत अच्छे तरीके से बनाया, बहुत सुंदरता से, पारंपरिक तरीके से। उज़मा लोहानी सुसरत, प्रिया जायसवाल ने अल यखनी यानी कि लौकी का यखनी बनाई थी,
और रज़िया लोहान जो कि हमारे स्टेट फाइनलिस्ट हैं। मैं एक और अनाउंसमेंट करना चाहती हूँ, घोषणा करना चाहती हूँ कि पूरी चारों स्टेट में 2 वीडियोज़ हैं जो सबसे बेहतरीन बने हैं, और उसमें से बेस्ट वीडियो बना है उज़मा लोहानी का, तो उनको बहुत बहुत बधाई। और सेकंड बेस्ट द्वितीय स्थान पे रेशमा वर्मा ने जो अपना वीडियो बनाया है रोड का, बहुत ही खूबसूरती से बनाया, बहुत तरीके से बनाया, कहाँ पे उसको स्लो करना है, कहाँ पे उसको तेज़ करना है। तो ये 2 हमारे वीडियो के फाइनलिस्ट हैं। प्रिया जायसवाल एक बहुत ही प्रॉमिसिंग यंगस्टर हैं और जिन्होंने बहुत ही प्यार से अपने व्यंजन को तैयार किया और सबके सामने प्रस्तुत किया, और उनको एज अ प्रॉमिसिंग एंटरप्रेन्योर, होम मेकर और पैशनेट कुक की तरीके से हम नवाज रहे हैं अवार्ड से। सबके लिए अप्रिसिएशन अवार्ड्स हैं। और जो स्टेट फाइनलिस्ट हैं आज बिहार की जाहिदा परवीन और कश्मीर की रज़िया लोहानी, आपको हार्दिक बधाई। सभी व्यूअर्स, सभी दर्शकों को, सभी शेफ्स को, जो लोग भी हमारे मिर्ची की खुशबू पहले सत्र में जुड़े, उनको बहुत बहुत शुक्रिया। पंजाब के परिणाम अभी बाकी हैं, हम प्रयास करेंगे कि सोमवार को, क्योंकि शेफ वरिंदर राणा थोड़े व्यस्त थे, तो पंजाब के परिणाम हम मंडे को करेंगे, सोमवार को। और उसके बाद हमारा जो 4 स्टेट्स और हैं उसके सभी नियम मैं दे चुकी हूँ व्हाट्सएप के ऊपर, ऑडिशन बंद हो चुके हैं और चारों प्रदेश की तैयारी शुरू कर दीजिए। हम सितंबर एंड में उसका लाइव शुरू कर रहे हैं, और उसके बाद मैं 4 स्टेट फिर से अनाउंस कर दूंगी ताकि बाकी लोग जो आगे के 4 प्रदेशों में भाग लेना चाहते हैं उसकी तैयारी भी शुरू कर दें। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। 10 बजे 10 मिनट के लिए यदि आप लोग के कोई प्रश्न हैं, नवरस रानी कौन, या जो आगे के 4 हमारे स्टेट्स हैं जिसका मिर्ची की खुशबू का, उससे रिलेटेड कोई भी प्रश्न है, मैं सिर्फ 10 मिनट के लिए आऊँगी। अगर आप होंगे तो अच्छी बात है, नहीं होंगे तो कोई बात नहीं, हम रोज़ मिल ही रहे हैं इसी बहाने से। धन्यवाद, शुभ रात्रि।